So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is for class 9th, right? So today we are starting with a new chapter, that is lesson 4 in the Kingdoms of Fools, which is a part of a Moments book, right? So class, if you remember, in our last video we have completed, or we have gone through a poem uh, which was the part of a beehive, and the lesson name was the legend of the Northland, right? So we have completed that particular poem, and I also gave you the homework to write down the meanings and question answers in your classwork copy from your English guide book of class 9, right? So till here we have completed, and today we are going through, or we are going with a new lesson, that is lesson 4, in the Kingdoms of Fools, right? So let us read the story and understand, or let us go through the contents what is given in the story, right? So let's proceed with the story, class. So lesson 4 in the Kingdoms of Fools, which is a part of a Moments uh, for class 9th, and it is the syllabus which is covering term 1. So let's proceed for the class. Lesson 4 in the kingdom of fools, right? So kingdom in the kingdom of fools, as the chapter is, the name of the chapter, or the meaning of the chapter is in the kingdom of fools. So there was a king, and he was having his kingdom means samraj, right? And in that kingdom, people who are there, the ministers who are there, uh, uh, under that particular king, they all were fools. Why? Because of some reason, and the reason will we will come to know only when we read the story. So let's proceed with the story, class. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? Right? So now the poet or the author is asking or saying, it is believed that, ये माना जाता है जो fools होते हैं वो बहुत dangerous होते हैं. Why? Because they only like give trouble to the peoples, they only make people or other person mad, right? That only very wise people can manage them means can handle them, ठीक है? और इन fools को कौन handle कर सकता है? सिर्फ जो कि wise लोग होते हैं. Wise means very intelligent people or knowledgeable people, right? Who are the fools in this story? Now the author is asking, or the writer or the writer is asking, who are the fools in the story? What happens to them? Now he's also asking what happens to them. Now the answer of these two questions will only be figure out when we are going to read the whole story. So let's proceed with the story, class. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots, right? Idiots means fools, means मूर्ख, ठीक है? सो किंगडम ऑफ फूल्स में जो कि स्टोरी है, किंगडम ऑफ फूल्स में, इसमें क्या है कि इस स्टोरी में जो किंग थे ठीक है, जो किंग था और जो उसके मिनिस्टर थे सारे, वो बहुत इडियट थे, मतलब बहुत बेवकूफ़ थे. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, राइट? सो वो सारी चीज़ों को दूसरे राजाओं, जो दूसरे राजा थे, ठीक है, दूसरे दूसरे प्रोविंसेस के, उनकी तरह अपने यहाँ चीज़ों को चलाना नहीं चाहते थे. वो नहीं चाहते थे कि हम किसी और की कॉपी करें या किसी और की तरीके से चलाएं. हम सारी चीज़ें डिफरेंट चलाएंगे और डिफरेंट रखेंगे. सो दिस डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम सबसे पहला चेंज क्या करेंगे कि दिन को रात में बदलेंगे और रात को दिन में, राइट? दे ऑर्डर्ड दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up, right? सो उन्होंने ऑर्डर किया, उस किंग ने सब सारे लोगों को, जो भी उसके साम्राज्य में वहाँ लोग थे, नॉर्मल पीपल, ठीक है, तो उनको ऑर्डर दिया गया. इस किंग और उसके मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया सबको कि दैट शुड बी अवेक एट नाइट, दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट, मतलब रात में उठना होगा सबको, ठीक है? क्योंकि जैसे नॉर्मल डेज़ या नॉर्मल लाइफ में रात में लोग क्या करते हैं, सोते हैं. पर यहाँ पे उल्टा हो गया था कि रात में लोग जगेंगे. टिल देयर फील्ड्स, टिल मतलब फार्मिंग, ठीक है, वो अपने खेतों को जोतेंगे, ठीक है,
अपनी फार्मिंग वाले ऑक्यूपेशन को करेंगे, और जिसका बिज़नेस है वो अपना बिज़नेस करेगा, ठीक है। ओनली आफ्टर डार्क, मतलब रात होने के बाद ही। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और तुरंत सोने के लिए चले जाएंगे जब जब सुबह होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और अगर किसी ने ये नहीं माना, डिसओबेड मीन्स नॉट टू ओबे, ठीक है, और नॉट टू से येस फॉर एनीथिंग दैट इज़ गिवन एज अ ऑर्डर, राइट। सो अगर किसी ने ये कहना, उस राजा का कहना नहीं मानेगा, कोई भी अगर उसके साम्राज्य में उसके कहने को नहीं मानेगा, या वो ये काम नहीं करेगा इस तरीके से, तो उसको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी, वो भी उसे डेथ मतलब मार दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, और लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उस किंग ने लोगों से कहने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। द किंग एंड द मिनिस्टर वेर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। डिलाइटेड मीन्स हैप्पी। जब किंग और मिनिस्टर ने ये देखा कि उनका ये काम एकदम सक्सेसफुली, उनका ये प्रोजेक्ट जो था सारा चीज़ चेंज करने का, वो एकदम सक्सेसफुली चल रहा था, प्रोसीड हो रहा था, तो वो बहुत खुश हुए ये सारी चीज़ें देख के। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल, डिसाइपल मीन्स फॉलोवर, ठीक है। सो एक दिन एक गुरु और उसका एक चेला अराइव्ड इन द सिटी, ठीक है, उस शहर में आते हैं। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट, ठीक है, और वो बहुत एक अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा शहर था, ठीक है, और एकदम खिली हुई धूप निकली थी। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, ठीक है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। क्यों? क्योंकि लोगों को बोल दिया गया था कि दिन में वो क्या करेंगे, सोएंगे, और रात में काम करेंगे। इसलिए जब वो दिन में दोनों, ये गुरु और उसका डिसाइपल दोनों जब आए, तो वहाँ पे दिन में उनको कोई भी नहीं दिखा। एवरी वन वॉज एस्लीप, सारे लोग सो रहे थे। नॉट अ माउथ स्टरिंग, स्टरिंग मीन्स नॉट इवन अ माउस, मतलब एक चूहा भी वहाँ पे मंडरा नहीं रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, और कैटल मतलब द शीप्स, द काउस, द बुफेलोज, उन सबको भी ट्रेनिंग दे दी गई थी दिन में सोने की। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड मीन्स शॉक्ड बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम, ठीक है, और वो दोनों, जो गुरु और उसका डिसाइपल था, वो बहुत शॉक रह गए ये सारी चीज़ें अपने आसपास या अपने चारों तरफ ये सारी चीज़ें या ऐसी चीज़ें होते हुए देख के। दे वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और वो वंडर्ड मीन्स घूमते रहे, वो चारों ओर, मतलब शाम तक उस शहर के चारों ओर घूमते रहे और सिर्फ घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business, और तभी जैसे ही शाम हुई तो सारे लोग जग गए और अपने बिजनेस के लिए निकल गए। जो जिसका काम था वो उस रात के टाइम में बिजनेस के लिए अपने बिजनेस, अपने काम काज पर चले गए। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries, right? सो अब ये दोनों लोगों को भूख लगी थी, जो गुरु और उसका डिसाइपल था, उन दोनों लोगों को भूख बहुत तेज़ लगी थी, क्योंकि वो जब से आए थे तो पहली बात तो कोई दुकानें खुली नहीं थी, कोई वहाँ पे इंसान नहीं था, और इस वजह से वो घूम भी रहे थे। हर समय उन्होंने पूरी दोपहर या पूरा डे टाइम उन्होंने घूमने में बिता दिया था, सर्च करने में बिता दिया था, तो इस वजह से उनको अब भूख लग रही थी। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और अब जबकि शॉप, सारी दुकानें खुल गई थी, तो उन्होंने ग्रॉसरीज, मतलब कुछ खाने पीने के सामान के लिए सामान को ख़रीदने के लिए वो दुकान पे गए। टू देयर एस्टॉनिशमेंट इज़ सरप्राइज, मतलब वो बहुत अचंभित हुए, ठीक है, क्या देख के? दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डूडू, राइट। सो वो बहुत आश्चर्य हुए, उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि सारी चीज़ें जो भी आप ख़रीदना चाहो, सारी चीज़ें चाहे वो कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, वो सिर्फ एक सिंगल डूडू की मिल रही थी। डूडू मीन्स द करेंसी दैट वाज रनिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वो करेंसी जो उस टाइम पे चल रही थी। जैसे अभी रुपीज़ चलता है, वैसे उस टाइम पे डूडू चल रहा था। सो वो बहुत मतलब आश्चर्य हो गया, उनको बहुत आश्चर्य हुआ ये देख के कि कोई भी चीज़ आप खरीदो वो सिर्फ सिंगल डूडू का था। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, अब चाहे वो मुट्ठी भर राइस लें, ठीक है, या बंच ऑफ बनानास लें, या मतलब बंच ऑफ बनानास लें, वो सारी, या डजन ऑफ बनानास लें, वो सारी एक ही प्राइस के थे, मतलब सारी चीज़ें एक ही प्राइस की थी। इट कॉस्ट अ डूडू,
राइट, और सारी चीज़ें सिर्फ एक डूडू की थी. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. नाउ ये सुनने के बाद किसी को भी खुशी होगी, तो वैसे उन दोनों को भी खुशी हो गई. फॉर एग्जाम्पल अगर अभी जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ शर्ट, इट विल कॉस्ट अराउंड 300, 400, 500. बट इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ कार, it will cost around like 5 lakhs or 6 lakhs or maybe 7 lakhs. So that's a difference, right? But if suppose if the rule is going to follow the same over here also, like if you're going to purchase suppose a shirt, right? Now if it is if you're getting the shirt for 100 rupees, and if you're getting a car also for 100 rupees, then what will happen? You will be happy, right? Everybody will be happy. So in the very same manner, the guru and the disciple were happy. Why? Because they are getting each and everything for one dudu. They had never heard of anything like this. और उन्होंने इससे पहले ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी सुना नहीं था. They could buy all the food they wanted for a rupee, right? और वो कुछ भी खरीद सकते थे खाने के लिए सिर्फ एक पैसे पे मतलब one dudu. That was that time's currency. When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools. जब उन्होंने अपने खाने को बना लिया, खा लिया, तो गुरु को आखिरकार ये रियलाइज़ हुआ, ठीक है, उसे ये समझ में आया कि ये किंगडम जो है, मतलब ये जो साम्राज्य है वो मूर्खों का है. एंड इट वुडेंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर. और उनको मतलब उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा यहाँ ज़्यादा दिनों तक रहना. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल. अब वो अपने डिसाइपल मतलब फॉलोअर से बोलता है कि ये हमारे लिए सूटेबल जगह नहीं है रहने के लिए, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं कहीं और. बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस. पर जो उसका फॉलोअर था, जो उसका चेला था, वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था. एवरीथिंग वॉज चीप हेयर. चीप मीन्स लो कॉस्ट, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम सस्ती थी और उसे सस्ते में सारी चीज़ें खाने को मिल रही थी. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. और उसका जो डिसाइपल था उसे बस एक ही चाहत थी कि उसे या उसको क्या चीज़ सबसे अच्छा लग रहा था कि उसको अच्छा खासा फूड एकदम चीप रेट में, एकदम सस्ते दाम में मिल रहा था. द गुरु सेड, लेट प्रोसीड फॉर द क्लास. The guru said, they are all fools. This won't last very long and you can't tell what they will do to you next. अब वो गुरु जो कहता है, जब वो मनाता है अपने डिसाइपल को और उसका डिसाइपल मानता नहीं उस जगह से जाने के लिए, तो गुरु कहता है कि तुम्हें पता है ये सारे लोग मूर्ख हैं, ठीक है, और ऐसी मूर्खता या ऐसे लोगों की जो मूर्खता है वो ज़्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, और तुम बिल्कुल भी नहीं पता लगा सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये अगली बार. बट द डिसाइपल वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम. विजडम मीन्स नॉलेज. पर जो डिसाइपल था उसको और कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय उसको अच्छा खाना, क्योंकि उसको अच्छा खाना मिल रहा था एकदम सस्ते में, ठीक है, तो इस वजह से उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी. ही वॉन्टेड टू स्टे, और वो रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट. ठीक है, सो गुरु ने फाइनली मतलब आखिरकार उसे बोला कि ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो, पर मैं तो जा रहा हूँ, और वो चला गया. द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे. ठीक है, और डिसाइपल वहाँ पे रुक जाता है, वो जो फॉलोअर था, वो जो चेला था उस गुरु का, वो वहाँ पे रुकता है या रुक जाता है, और वो अपने स्टमक को भरता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा खाने पे वो कॉन्सेंट्रेट सारा दिन करता है. बनानास एंड घी एंड राइस एंड वीट, और उसे जो भी मिलता है वो हर एक चीज़ खाता है. एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल. ठीक है, और कैसे एकदम मोटा तगड़ा हो जाता है, कैसे एक बुल की तरह. बुल मीन्स एक सांड की तरह तगड़ा हट्टा कट्टा हो जाता है. सैक्रेड यहाँ पे मतलब है होली, क्योंकि वो गुरु का डिसाइपल था, मतलब गुरु का चेला था, इसलिए उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट बन गई थी वहाँ पे लोगों के बीच में. इसीलिए उसको वो तो और खा के वो मतलब एकदम मोटा हो गया था. ठीक है, बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था. और सैक्रेड क्यों मान रहे थे उसे, होली इसलिए माना जा रहा था क्योंकि वो गुरु का डिसाइपल था, मतलब एक गुरु का चेला था, इस वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से देखते थे. और एट द सेम टाइम ही बिकेम वेरी फैटी while eating all those good foods which were selling on a very cheap rates, right? So let's proceed further, class.
On bright day, a thief broke into a rich merchant's house. राइट, एक दोपहर क्या हुआ, क्योंकि दोपहर में सारे लोग सोते थे, तो एक दोपहर में क्या हुआ, एक चोर एक रिच मर्चेंट के घर में, मर्चेंट मीन्स एक बिजनेसमैन के घर में घुस जाता है. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन. ठीक है, उसने दीवार में छेद किया. ठीक है, और दीवार में एक बड़ा सा छेद करने के बाद उसी छेद से अंदर घुस गया. स्नीक्ड मीन्स वेंट इन. एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और वो लूट का जो सारा उसने इकट्ठा किया था चीज़ें लूट करने के बाद, वो लेके बस निकल ही रहा था कि द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड. कोलैप्स्ड मीन्स फॉलन. कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट. अब वो लूट का सारा सामान लेके निकल ही रहा था, क्योंकि उसने लूट कर ली थी, मतलब चुरा लिया था, और चुरा के बस वो सामान को निकल ही रहा था कि इतने में जिस दीवार में उसने छेद किया था वो दीवार गिर जाती है उसके सर पे, और वो वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट मर जाता है. हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट. ठीक है, और उसका भाई जो है वो तुरंत दौड़ के राजा के पास जाता है और वो कंप्लेंट करता है, मतलब उसे कंप्लेन करता है. योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम. अब उससे बोलता है कि योर हाइनेस, जब मेरा भाई, ठीक है, परसुइंग मीन्स डूइंग हिज एंशियंट ट्रेड. एंशियंट मतलब पुराना धंधा, ट्रेड मीन्स बिजनेस. अब उससे बताता है कि योर हाइनेस, जब मेरा भाई अपना एक पुराना धंधा कर रहा था, ठीक है, अपना एक पुराना बिजनेस कर रहा था, एक दीवार उसके ऊपर गिर जाती है या गिर गई और वो वहीं के वहीं मर गया. ठीक है, सो नाउ यू कैन से कि एंशियंट ट्रेड मतलब जो चोरी का काम वो कर रहा था, उसके भाई को भी पता था कि वो चोरी कर रहा था, पर यहाँ उसको एक अलग तरीके से बताया गया. उसको क्या नाम दिया गया, उसको एक बिजनेस का नाम दिया गया, वो भी एंशियंट मतलब पुराना बिजनेस. दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम. ठीक है, अब वो जो आदमी है, जो उसका भाई है, जो मर गया, उसका भाई क्या कहता है कि ये मर्चेंट को ब्लेम करना चाहिए, मतलब दिस मर्चेंट इज़ अ कल्प्रेट. राइट, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल. और वो आगे कहता है कि इसको इस मर्चेंट को अच्छी और स्ट्रॉन्ग दीवार बनानी चाहिए थी, पर क्योंकि इसने दीवार एकदम कमज़ोर बनाई और इसकी वजह से मेरे भाई की जान चली गई. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस. ठीक है, और वो आगे बोलता है कि मतलब योर हाइनेस, आपको जो रॉन्ग डूअर है, मतलब जो गलत काम, जिसने गलत काम किया है, उसको पनिश करना चाहिए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए और कंपनसेट करना चाहिए फैमिली को. कंपनसेट मीन्स टू रीपे फॉर द लॉस, मतलब जो भी लॉस हुआ है उसका हर्जाना जिसे कहते हैं, उसका हर्जाना फैमिली को देना चाहिए. ठीक है, फॉर दिस इनजस्टिस, क्योंकि इस इंसान के साथ जो मेरे भाई, क्योंकि वो एंशियंट ट्रेड कैरी कर रहा था, एक अपना बिजनेस कैरी कर रहा था या कर रहा था, तो इसके साथ इनजस्टिस हुआ कि ख़राब सी दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया. तो ये इनजस्टिस है. तो ये जो रॉन्ग डूअर है, मतलब जो मर्चेंट है, उसे पनिश करिए और उसके फैमिली, मेरे भाई के फैमिली को क्या दीजिए, हर्जाना दीजिए. द किंग सेड जस्टिस वेल बी डन. तो किंग कहता है कि हाँ हाँ, मतलब जस्टिस होगा. ठीक है, मतलब उसको, उस इंसान को न्याय मिलेगा. डोंट वरी, चिंता मत करो. एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस. समन मीन्स ऑर्डर टू बी प्रेजेंट, मतलब उस जो ओनर था, जो मर्चेंट था, उसको बुलाने के लिए अपने सिपाहियों को भेज देता है. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. So homework, students, you all have to write down the word meanings in your classwork copy and in the book too. ठीक है, so whatever meaning I have written in the book, ठीक है, in my book you have to write down the same meaning in your book also, and write down the word meanings in your classwork copy too. Right, so what you have to do is you have to read the pages that I have just read, right, and figure out you might be figuring it out, you might be going through a lot of word that needs whose meanings are not written in the book. So you have to write down those meanings, right, and those word along with the meaning in your classwork copy and in the book too. Then you have to read down the story, you have to read this story a little further, so so that when in the future, that means in the next period, if I will be teaching, or when I will be teaching the story, you will be understanding the story a little bit better. So students, in our next class we will continue with the same story, right? We will continue with the same story. Till then, take care and stay safe. Thank you, class.